Good evening, ladies and gentlemen. On the behalf of DAN College of Education for Women Namashahr and CTEF Punjab and Chandigarh chapter, I welcome you all on the 6th day of 7-day workshop on lesson planning. I extend my heartiest welcome to the resource person of today's session, Dr. Pooja Arora, Assistant Professor, MGN College of Education, Jalandhar. Yesterday, we had wonderful session on the lesson planning based on constructivistic approach. Dr. Rekha, Assistant Professor, Malwa Central College of Education for Women, was the resource person. She had wonderfully explained the concept of constructivism and constructivistic based lesson planning by giving real life examples. She has also demonstrated how to implement constructivistic based lesson in the class. Now, I request Mr. Jaswinder Singh to present report of yesterday's session. Mr. Jaswinder Singh. थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जसविंदर। हेलो। हाँ जी जसविंदर, आ रही। ठीक है सर। हाँ जी, मेरे ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਐਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਅਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਡੀਐਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਵੱਲੋਂ CTEF ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ DAN ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਖਾ, ਮਾਡਰਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੇਖਾ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਰਨਾ ਉਬਰਾਏ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ IQAC DAN ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵਿਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। Now, from today onwards, the shift of our workshop, the focus of our workshop will going to be shifted from lesson planning to micro teaching. Micro teaching, as all of us know, that is a scaled down teaching which is used as a tool to prepare teachers. In micro teaching, there are different micro skills, and in today's session, we are going to discuss 2 micro skills. One is skill of stimulus variation and second is skill of explanation. And our today's resource person is Dr. Pooja Arora. Dr. Pooja Arora is Assistant Professor, MGN College of Education, Jalandhar. She is MSc Mathematics, MEd, PhD Education, also UGC NET. She has
5 books and 30 research paper to her credit. And she also presented paper in many conferences at national and international level. Dr. Pooja is very dynamic, confident young girl with full of energy. I'm quite sure that all of you will going to enjoy her today's session. Now I request Dr. Pooja to take over the proceeding. Dr. Pooja, please. Thank you, Dr. Vikas. You gave my introduction in such a way, it makes me feel a bit shy, but still thank you. I thank all the participants for joining today's session. And before commencing, I would like to thank Dr. Vikas that he gave me this opportunity that I can interact with all such educated and qualified people, and I can present my whatever knowledge I have about these two skills to these wonderful people. So not wasting much of your time, I will start with my presentation. Before I start explaining today's skills, that is skill of explanation and skill of stimulus variation, I would briefly like to make a mention of micro-teaching. Micro-teaching, as Dr. Vikas rightly said, it is a scaled-down teaching. Scaled-down teaching क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि इसमें हम क्लास साइज, क्लास ड्यूरेशन, कंटेंट जो भी हमने पढ़ाना होता है उसकी साइज को हम रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस करके इट गोज अप टू 5 to 7 या 5 to 10 मिनट्स. और ड्यूरिंग दैट स्केल डाउन टीचिंग हमारी कोशिश ये होती है कि जो प्यूपिल टीचर्स हैं वो उन स्किल्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें जो अल्टीमेटली एक कंपोजिट लेसन प्लान का पार्ट बनेंगे और एक मैक्रो लेसन को सक्सेसफुल बनाने में प्यूपिल टीचर्स की मदद करेंगे. अब there are many skills, skill of explanation, stimulus variation, previous knowledge testing, skill of blackboard writing, skill of reinforcement, skill of demonstration. All these skills are necessary for making a composite lesson to be a success. तो इस सक्सेस प्रोसेस में इन स्किल्स की प्रॉपर लर्निंग, क्योंकि माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टीचिंग है जो हमें ये उसका साइकिल ही ऐसा है जो हेल्प करता है पहले तो स्किल को प्रॉपरली प्लान करने में, फिर उसको टीच करने में, और फिर हमें जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो देखकर उस पर हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं. एंड देन वॉट एवर शॉर्ट कमिंग्स वी हैव ड्यूरिंग आवर फर्स्ट प्लानिंग, हम उसको री-प्लान करके उन शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव करते हैं, री-टीच करते हैं और हमें री-फीडबैक जो है दिया जाता है. So this is what is micro teaching. अब my topic of concern today is skill of explanation. अब पहला जो है skill of explanation होता क्या है? It is actually a very important skill, बहुत ज़रूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि जो हमारा सारा कंपोजिट लेसन है वो बेसिकली डिपेंड इस पे करता है आप कितने अच्छे तरह से कंटेंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, कितने बढ़िया तरीके से आप प्रीवियस नॉलेज जो है स्टूडेंट्स की ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ रिलेट करके उनको न्यू नॉलेज प्रोवाइड कर पाते हैं. दिस इज बेसिकली व्हाट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन. अब इसके बेसिस जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म में लाई करते हैं. अब वो हमारा जो प्रेजेंट करिकुलम है दैट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म. वी अवॉइड स्पून फीडिंग फॉर टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स. हम ये चाहते हैं कि जो लर्नर्स हैं वो अपनी नॉलेज जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करें. दे आर अ स्टोर्ड हाउस ऑफ आइडियाज. उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है. वी कैन नॉट कंसिडर
कि उनका माइंड जो है वो एक ब्लैंक स्लेट है। तो उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में मदद करना वो इस पे डिपेंड कर देगा कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन, जब आप अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उनकी ओल्ड नॉलेज को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करके अपनी न्यू नॉलेज के साथ अटैच कर रहे हैं और उनको न्यू नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्सप्लेनेशन के? अभी बार बार आई हैव रिपीटेड, इट correlates the old knowledge to new knowledge. Moreover, it helps the students to understand the new concepts, points, principles, laws. It basically answers the questions. Why? How much? जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए ही आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हेल्प करती है। और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उनके स्कोप ऑफ नॉलेज को और बढ़ाती है और उनको हेल्प करती है। अब दैट डिपेंड्स कि अगर मैं ये बात कहूँ कि वो हेल्प करती है उनको अंडरस्टैंड करने में न्यू कंटेंट, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन को उनके सामने प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। एक्सप्लेनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स: डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेटिव एक्सप्लेनेशन, रीजन गिविंग एक्सप्लेनेशन। बात आ जाती है कि व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। डिस्क्रिप्शन इज जब आप किसी फिनोमिनन को एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इट अकर्ड, हाउ यू डिस्क्राइब दैट फिनोमिना। वाटर साइकिल जो है वो किस तरह से अकर करता है, हाउ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड, हाउ अ बैरोमीटर वर्क्स, हाउ अ थर्मोमीटर वर्क्स। जब आप इस हाउ को सेटिस्फाई करते हैं तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन। इंटरप्रेटिव एक्सप्लेनेशन आप लैंग्वेजेस में देखते हैं, टीचर्स स्टोरीज पढ़ाती हैं, पोएम पढ़ाती हैं, एंड आफ्टर दैट समटाइम्स द टीचर वो मॉरल निकालने को कहती है, टेल अबाउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी और राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो वो जो मॉरल है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपने उस एक्सप्लेनेशन को ठीक तरह से इंटरप्रेट किया है। अगर इंटरप्रिटेशन ठीक तरह से हुई है तभी you can properly write the moral of a particular story or you can write the central idea of a particular poem. फिर आ जाता है रीजन गिविंग एक्सप्लेनेशन। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसमें आप कोई रीजंस जो हैं उनको कोट करते हैं, चेंजेस आप बता रहे हैं, ये फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है। अब क्यूरियोसिटी बच्चे की हमेशा ये इस बात पे रहेगी कि व्हाई इट इज a physical change, why it is a chemical change। अब जब इस why को आप satisfy करते हो, एक reason देते हो कि ये physical change इसलिए है, ये chemical change इसलिए है, तब हम उसको कहते हैं reason giving explanation। फिर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल जो होता है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन का, इट इज बेसिकली अ 7-point रेटिंग स्केल, 1 से 7 तक ये रन करता है और 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स जो हैं वो हम इसमें चेक करते हैं। डिजायरेबल बिहेवियर्स, डिजायरेबल मीन्स क्या आपको करना चाहिए, और अनडिजायरेबल क्या नहीं करना चाहिए। अब 3 चीजें जो हैं वो आपके 3 जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके आ जाते हैं डिजायरेबल बिहेवियर के अंदर। मीनिंग देयर बाय कि अगर आपको इसमें रेटिंग हायर ऑर्डर साइड पे मिलती है, 5 पे रेट किया जाता है, 6 पे रेट किया जाता है, 7 पे रेट किया जाता है, ऑब्जर्वर्स कभी भी 7 पे रेट नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज you have reached perfection, but actually there is always a scope of improvement। तो अगर आपको हायर ऑर्डर साइड पे रेट किया जाता है तो दैट मीन्स योर बिहेवियर व्हाइल यू आर डिलीवरिंग दैट पर्टिकुलर स्किल, दैट इज अ डिजायरेबल बिहेवियर। और अगर हम अनडिजायरेबल बिहेवियर्स की बात करें तो इन दैट केस आप लोअर ऑर्डर साइड पे रेट होते हैं, तो दैट मीन्स कि आप इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर रहे और नहीं करना भी चाहिए। अब इन कंपोनेंट्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, व्हाट डू दे मीन, व्हाट इज देयर एक्सप्लेनेशन, वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे।
यहाँ पे सिर्फ आपको इतना जानना जरूरी है कि जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो डिजायरेबल बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं, और जो बाकी के 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके अनडिजायरेबल बिहेवियर्स, जो चीज आपको नहीं करनी चाहिए. रेटिंग फॉर द डिजायरेबल बिहेवियर्स should be at the higher order side, and rating for the undesirable behaviors should be on the lower order side. अब आ जाता है कि कंपोनेंट्स को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना. सबसे पहले बात आती है clear beginning and concluding statements. This is very important. You are sharing an idea to the student when you begin with. आपका जो शेयरिंग है आइडिया वो क्लियर होना चाहिए, आपकी क्लियर बिगिनिंग होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट्स को टीच क्या करना चाहते हैं, ताकि वो अपने माइंड को उसके अकॉर्डिंगली रेडी कर सके. अगर उनका माइंड उस चीज को अटेन करने के लिए रेडी हो जाता है तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फ्रूटफुल, जो एक्सप्लेनेशन आप देंगे दैट विल बी अ सक्सेस, वो फ्रूटफुल साबित होगी. And once you complete your explanation, it's very necessary कि आप उसको properly conclude करें. Conclude means कि आपने जो भी पढ़ाया, जो भी समझाया, उस concept को आप एक concluding statement, it can be 1, it can be 2, it can be 3, जिस हिसाब से, जिस नेचर का आपका कंसेप्ट था उसी के अकॉर्डिंगली समराइज करना उस कंसेप्ट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 आ जाता है एक्सप्लेनेशन लिंक्स यूज करना. जब आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कनेक्टिंग लिंक्स देने बहुत जरूरी होते हैं. प्रॉपर एग्जाम्पल्स, लैंग्वेजेस हैं तो ईडियम्स, फ्रेजेस, स्टेटमेंट्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स जो इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन में काम करें. प्लस आपको पता है कि आप एक न्यू नॉलेज जो है वो बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो जो उसके लिंक्स है वो कहीं ना कहीं उनकी ओल्ड नॉलेज में है ही है. यू आर गोइंग टू लिंक देयर ओल्ड नॉलेज विद दैट न्यू नॉलेज. अगर वो कनेक्टिंग लिंक्स आप ठीक तरह से एस्टेब्लिश कर पाते हैं, अगर वो कनेक्टिविटी ठीक तरह से एस्टेब्लिश हो जाती है, अगर आप एग्जाम्पल्स उनकी ओल्ड नॉलेज को यूज करके दे पाते हैं और न्यू नॉलेज के साथ उसको कोरिलेट कर देते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन लिंक्स बहुत हेल्प करेंगे आपके कंटेंट को बच्चों को प्रॉपरली, स्टूडेंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में. फिर आ जाता है कि you should not use irrelevant statements. जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं it should be related. Irrelevant कोई भी स्टेटमेंट आपको यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप irrelevant statements यूज करते हैं टीचिंग में तो it is a waste of time and it can mislead the students as well. तो relevant statements related to the concept, जो चीज आप पढ़ा रहे हो उसके साथ रिलेट करती हुई स्टेटमेंट्स जब आप यूज करते हो तो डेविएशन नहीं होती स्टूडेंट्स के माइंड में. दे डोंट डेविएट ऑफ व्हाट द टीचर, द प्यूपिल टीचर इज गोइंग टू और ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द प्यूपिल्स. जब वो एक्सप्लेनेशन जो है वो रेलेवेंट स्टेटमेंट्स के साथ चलती है, कंसेप्ट के साथ चलती है, लिंक एस्टेब्लिश करके चलती है, तो वो एक्सप्लेनेशन जो है वो सक्सेसफुल होती है. Then is coordination in statements. एक कोऑर्डिनेटेड लेसन जो होता है, लिंक्ड लेसन जो होता है, जैसे आप एनर्जी बढ़ा रहे हो, आपने डिफाइन की एनर्जी पहले, फिर आपने टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, फिर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, फिर आपने एग्जांपल्स दिए एनर्जी के, फिर आपने ये बताया कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं. These are coordinated statements. They should be used by a teacher in such a way कि meaningful content जो है वो generate होके सामने आए. पिछला जो आपका कंसेप्ट है, एक एनर्जी को जब आप पढ़ा रहे हो, जब आप उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, बेस से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वो मीनिंगफुल कनेक्शंस जो हैं, कोऑर्डिनेशंस होनी चाहिए स्टेटमेंट्स में, लिंकेजेस होनी चाहिए, सो
दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी चीज को आपकी द्वारा जो बोला जा रहा है वो उसको मिस इंटरप्रेट ना करें। देन फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है तो जहां पे अगर तो आपकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है, आप खुद उस कंसेप्ट को लेके बिल्कुल क्लियर हो, तो आप कहीं पे फंबल नहीं करेंगे, आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी रहेगी, आप क्लियर रहेंगे, आप ऑडिबल रहेंगे, आप प्रॉपर पॉज के साथ चलेंगे टीचिंग में, बिकॉज द कंटेंट इज क्लियर टू यू। वंस द थिंग्स आर क्लियर टू अस, we can properly explain them with an audible and clear voice to the pupils. Clarity on the side of pupil teacher, it leads to the clarity of the content on the sides of the pupils. यानी कि pupils जो हैं उस चीज को, students जो हैं वो उस चीज को properly understand कर पाएंगे. They will understand if your voice is clear, it's audible, you are fluent. और वो चीज तभी पॉसिबल है अगर आप उस कंटेंट को लेके खुद प्रॉपरली क्लियर है। देन यूज ऑफ प्रॉपर वर्ड्स एंड एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। टीचर मस्ट यूज प्रॉपर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस सो दैट कोई भी मिस्टेक जो है वो एक्सप्लेनेशन में ना हो। वेग वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, वर्ड्स जो कंसेप्ट के साथ नहीं जाते वो नहीं यूज करने चाहिए। गुड एक्सप्लेनेशन जो है, अच्छी एक्सप्लेनेशन तभी पॉसिबल है अगर वोकैबुलरी ठीक है, वर्ड्स सही यूज किए जा रहे हैं और कन्वीनियंट होगी स्टूडेंट्स के लिए उस एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करना। अगर आप अनवांटेड सेंटेंसेस, अनरिलेटेड टू द कंसेप्ट यूज नहीं करते हो तो मीनिंगफुल टीचिंग, मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन जो है, गुड एक्सप्लेनेशन जो है, that will reach to the pupils. So proper words, sentences, that is very important. No mistake should be made while explaining. और देखो, to err is human. We are human beings. गलती इंसान से होती है, तो गलती ऐसी हो कि अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो you should know how to cover that up. आप आजकल कितने सारे रियलिटी शोज देखते हैं टेलीविजन पे, they are singing reality shows and they are dance reality shows. अगर तो गलती दिख जाए तो वो गलती, और अगर गलती ना दिखे तो दैट मीन्स कि यू आर सक्सेसफुल। यही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होता है। गलती कोई भी कर सकता है, एक्सप्लेनेशन में भी गलती हो सकती है, लेकिन आपको आना चाहिए कि आप उस गलती को कवर अप करके किस तरह से अपने एक्सप्लेनेशन को ट्रैक पे लेकर आते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके वर्ड्स एप्रोप्रिएट हैं, आपकी वोकैबुलरी एप्रोप्रिएट है, तो ये गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि आप एक गुड एक्सप्लेनेशन, एक हेल्दी एक्सप्लेनेशन जो है वो अपने कंसेप्ट, कंटेंट से रिलेटेड स्टूडेंट्स तक ना पहुंचा सके। फिर अब आ जाता है माइक्रो लेसन प्लान। किस तरह से, जो बेसिकली जो डिमांड है कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो माइक्रो लेसन प्लान जो है वो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन पे किस तरह से बनना चाहिए। नॉर्मली ये होता है, हमारे जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं आजकल हम हॉरिजॉन्टल पैटर्न के साथ चल रहे हैं, पीटी एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी। और जब आप स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन की बात करते हो तो आपको कंपोनेंट, जैसे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन की बात करें तो हम मेंशन करते हैं कि हमने कौन कौन सा कंपोनेंट कौन कौन से स्टेप पर यूज किया है। इस केस में इट्स नॉट नेसेसरी टू मेंशन द कंपोनेंट। आई हैव यूज्ड अ टैबुलर फॉर्म ताकि आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सके, और मैंने साथ में कंपोनेंट्स भी इसलिए मेंशन किए हैं कि जो जो स्किल के कंपोनेंट्स हैं आपको पता चल सके वो किस तरह से कवर अप हो रहे हैं when a particular micro lesson plan is being disseminated by the pupil teacher in the class. So आपका पहला जो कॉलम है वो पीटी एक्टिविटी का बनता है, दूसरा pupils activity and then which component is being used. अब मैंने जब ये स्किल एक्सप्लेन करनी शुरू की थी तो मैंने एक बात बहुत क्लियरली कही थी कि आपकी इनिशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो एक स्टूडेंट्स को, जैसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जला देना, उनको ये बात पता चल जाए कि what old knowledge is actually going to be used
in the new knowledge which the teacher is going to provide us. वो अपनी उस knowledge को कलेक्ट करके अपने माइंड को एकदम से एनलाइटन कर सके, और जब उस कंसेप्ट को पढ़ाया जा रहा हो, एक्सप्लेन किया जा रहा हो, तो वो कलेक्टेड नॉलेज उस न्यू नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे. तो एज यूजुअल हर लेसन प्लान में आपको पता है, आप लेसन नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं, सब्जेक्ट, टॉपिक, इलस्ट्रेटिव एड्स जो आप यूज करेंगे दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आप क्या करते हैं, क्लास, पीरियड, टाइम, कितने टाइम का वो लेसन होगा. अब यहाँ पे पीटी एंटर्स द क्लास, वो गुड मॉर्निंग विश करती है, दैट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द स्किल्स विच यू विल लर्न. अब हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मैंने स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन के लिए पिकअप किया है, दैट इज साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. अब इसको शुरू करने से पहले जो टीचर की, प्यूपिल टीचर की इनिशियल स्टेटमेंट रहेगी वो ये रहेगी कि ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम. स्टूडेंट्स, यू नो दैट ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल. इमीडिएटली वो अपनी नॉलेज जो है उसको इकट्ठा करना शुरू कर देंगे. वेयर दे विल गो बैक, दे विल ट्राई टू रिकलेक्ट कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनको दे विल जस्ट रिफ्रेश देयर मेमोरीज कि 3 तरह के होते हैं जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं. दे आर पैरेललोग्राम, दे आर, इट इज ट्रेपेजियम एंड इट इज अ काइट. अब पैरेललोग्राम जो है उसकी आगे 3 सब टाइप्स होती हैं, रेक्टेंगल, square and rhombus. So the teacher is trying to discuss कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है. तो वो पहले से ही अपनी जो एलोकेटेड, रीएलोकेटेड नॉलेज है उसको जज आउट कर लेंगे कि yes, her initial statement is absolutely correct that all rectangles are parallelogram because a rectangle is a type of parallelogram, but all parallelograms are not rectangle. Why they are not rectangle? Because it can be a square, it can be a rhombus. So initial statement आपकी बच्चों को क्लियर कर देगी, वो अपनी नॉलेज जो है उसको असेंबल कर लेंगे. फिर आगे क्या है, वो टीचर 1 मिनट के लिए पॉज लेती है. Why वो पॉज लेती है? Just to look at the faces of the pupil, because अगर तो कहते हैं ना yes, अगर वो आपकी बात से सहमत है तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको ये बात बता देंगे, आप इंटरप्रेट कर पाएंगे उनके फेसेस को देख के. एंड इन केस ये नहीं होता तो आप पूरी स्किल पढ़ा लीजिए, जो आपका एफर्ट है इट विल बी अ वेस्ट. सो इट इज नेसेसरी कि पहले आपकी इनिशियल स्टेटमेंट करेक्ट हो, उस स्टेटमेंट को देने के बाद आप एक जजमेंट ले लें कि यस, द स्टूडेंट्स आर इन एग्रीमेंट विद व्हाट आई हैव सेड. अब उसके बाद क्या होगा, वो एक चार्ट यूज करेगी जिसपे एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो बना होगा, जिसमें इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो मार्क किए गए होंगे. आप ये देख सकते हैं, this is a cyclic parallelogram ABCD in which the interior angles are marked as 1, 2, 3, 4. अब काम आ जाता है उसके एक्सप्लेनिंग लिंक्स का, कनेक्टिंग लिंक्स. जो नॉलेज बच्चों के पास है उसको उसने इस्तेमाल करना है अपनी न्यू नॉलेज तक पहुंचने के लिए. तो you can see, as we know, the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. ये 9th क्लास का टॉपिक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 6th में, 7th में बच्चे ये पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उन टाइप्स की आगे सब टाइप्स क्या होती हैं, और ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होते हैं. तो इसीलिए द स्टेटमेंट व्हिच इज बीइंग यूज्ड इज, एज वी नो द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. तो वो क्या करती है कि ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री के बराबर उनको करके और इक्वेशन बना देती है. Then it's also ABCD is a parallelogram, and it is, we know that opposite sides of a parallelogram are equal, as well as the opposite angles of a parallelogram are also equal.
अब यहाँ पे उसकी कॉन्टिन्यूटी और फ्लुएंसी में कोई गैप इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सारे जो लिंक्स वो यूज कर रही है ये वो लिंक्स हैं जो प्यूपिल्स की पिछली नॉलेज, ओल्ड नॉलेज को यूज करके न्यू नॉलेज को प्रोवाइड करने में हेल्प आउट कर रहे हैं. She uses the equation. She replaces angle 3 by angle 1. She replaces angle 4 by angle 2 और ultimately angle 1 की भी वैल्यू निकाल देती है और angle 2 की भी वैल्यू निकाल देती है. In all this entire process, नॉलेज उसकी न्यू थी, एक्सप्लेनेशन उसकी एक नए टॉपिक के लिए थी, लेकिन जितने भी उसके कनेक्टिंग लिंक्स थे वो प्यूपिल की ओल्ड नॉलेज को यूज कर प्रेजेंट किए गए. तो अल्टीमेटली जब दो एंगल को वो 90 डिग्री प्रूफ कर देती है तो सिमिलरली वो कोट कर देती है कि एंगल 3 एंड एंगल 4 इज आल्सो 90 डिग्री एंड दस ईच एंगल ऑफ अ साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इज 90 डिग्री. अब इसके बाद होता है कि आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि प्यूपिल्स ने कुछ अंडरस्टैंड किया या नहीं किया. आपने तो पढ़ा दिया लेकिन प्यूपिल गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉट. आपकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो प्यूपिल्स ने अंडरस्टैंड की या नहीं की. उसके लिए आप दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. गिव वन प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ऑब्वियसली द प्यूपिल्स नो, आप ऊपर भी कह चुके हैं दैट यू नो that in a cyclic quadrilateral the sum of opposite angles is 180 degree. And then जो आपने पढ़ाया why a cyclic parallelogram is always a rectangle, उसका एक रीजन है. हमें पता है कि रेक्टेंगल जो है वो एक ऐसी फिगर होती है जिसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है. तो अगर ईच एंगल 90 डिग्री बन गया तो दैट मीन्स वो जो साइक्लिक पैरेललोग्राम था वो दैट इमर्ज्ड आउट टू बी अ रेक्टेंगल. And ultimately she concludes, she summarizes that we can say that because a cyclic parallelogram is possessing all the properties of a rectangle, therefore opposite sides are equal and each interior angle is 90 degree. Therefore a cyclic parallelogram is a rectangle. अब basically अगर आपने इस lesson plan में देखा हो तो connecting links उनकी old knowledge से emerge करते थे. अगर कनेक्टिंग लिंक्स आप उनकी ओल्ड नॉलेज से इमर्ज करके उनको न्यू नॉलेज देने में हेल्प कर रहे हैं तो जो न्यू नॉलेज वो ग्रास्प करेंगे वो ग्रास्प करने में उनको कोई भी डिफिकल्टी जो है वो नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन. टू मेक दिस स्किल अ सक्सेस द प्यूपिल टीचर पहले कोई भी जब वो कंटेंट उठाता है या उठाती है, कोई भी वो कंसेप्ट उठाता है, पहले उस कंसेप्ट के बारे में उसकी अपनी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. अगर वो प्रॉपरली उस चीज को लेके क्लियर है तभी वो एक इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन की स्किल प्रिपेयर कर सकता है और तभी वो सेटिस्फेक्शन लेवल अपने प्यूपिल्स जिनको वो डिलीवर कर रहा है वो स्किल उनके फेसेस पर देख पाएगा. अपने पढ़ाए हुए की पॉजिटिव जो फीडबैक है, उनकी जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस है, उनसे वो ले पाएगा. सो दिस वाज अबाउट स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड नाउ आई वांट टू टॉक on skill of stimulus variation. अब again it is a very important skill. Basically हम इसको parts में पहले पढ़ेंगे. Stimulus क्या होता है, variation क्या होती है and how then the skill of stimulus variation emerges. अब stimulus basically वो चीज होती है जो motivate करता है आपको respond back करने के लिए. जब भी हम teaching learning process के बारे में बात करते हैं हम हमेशा ये बात प्यूपिल्स हैं वो कभी भी पैसिव रिसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज नहीं होने चाहिए. दे शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अगर आप उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आपका लेसन उस तरह का होना चाहिए, उसमें स्कोप उस तरह का होना चाहिए, उसमें एक्टिविटीज उस तरह की होनी चाहिए कि आपका जो स्टूडेंट है वो अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, पार्टिसिपेंट रहे. He should not feel at any time कि उसका lack of interest जो है वो लेसन में हो गया है. तो ये जो बेसिकली स्किल है जो ये हेल्प करती है उस इंटरेस्ट को अराउज करके रखने में. बिकॉज ऑफ दिस स्किल, इट इज बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस
कि आप साइकोलॉजिकली मेंटल लेवल पे बच्चों से रिस्पॉन्सेस प्रोक्योर कर सकते हैं, या आप उनको फिजिकली पार्टिसिपेट करवा के कोई एक्टिविटी के फॉर्म में उनसे रिस्पॉन्सेस प्रोक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है, एक ऐसा एजेंट है जो आपको मोटिवेट करता है रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए। फिर आ जाता है वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है कि स्टिमुलाई का चेंज होना, वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टिमुलस चेंज होता है तो कंटेंट लाइवली बनता है, और जो बोर्डरम है, जब वेरिएशन आती है उस स्टिमुलस में, बोर्डरम जो है क्लासरूम टीचिंग का, जो बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं वो रिमूव हो जाता है, और जो कंटेंट है आप उसको लाइवली जो है एक्टिवली लाइवली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वेरिएशन मीन्स चेंजिंग दीज स्टिमुलाई टू एक्सप्लेन द कंटेंट लाइवली एंड टू रिमूव द बोर्डम फ्रॉम द क्लासरूम टीचिंग। अब आता है फिर व्हाट इज स्टिमुलस वेरिएशन? The set of teacher behaviors that tend to secure and sustain pupils' attention in the skill of stimulus variation. ऐसे कौन से behaviors टीचर करेगा while the presentation of the lesson, किस तरह से वो behave करेगा कि throughout the skill, जब skill demonstrate कर रहा है, पीटी जब स्किल डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, तो बच्चों की अटेंशन को वो सिक्योर भी करके रख सके और उनका जो इंटरेस्ट है वो उस लेसन में बना भी रहे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्किल के? टू एनहांस, आप इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे स्टूडेंट्स की टीचिंग में। अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है तभी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपरली हो पाएगी। अगर स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कैसे करेगा? और अंडरस्टैंड तब करेगा अगर वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व है, अगर क्लास में लाइवलीनेस है। अगर लाइवलीनेस नहीं होगी तो बोर्डम होगी, बोर्डम होगी तो नॉर्मली क्या होता है, वो जो स्लीपी फीलिंग है वो बच्चों में क्रीप अप होनी शुरू हो जाती है। तो उस लाइवलीनेस को मेंटेन रखने के लिए, ताकि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो सके थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, और बच्चे कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट जो है वो थिंक करें फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, दिस स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अटेंशन ग्रैब कर ली तो मेंटल फटीग अपने आप चली जाएगी, वो दिमागी तौर पे थकावट नहीं महसूस करेंगे अगर वो आपकी लेसन की तरफ अटेंटिव है। अटेंटिव तब होंगे अगर आपका लेसन उतना अट्रैक्टिव है, उसमें वो सब स्टिमुलाई हैं जो एक अटेंशन सीकिंग का काम प्ले जो है रोल प्ले कर सके। एंड फाइनली आप टीचिंग एड्स कैसे यूज करते हैं, इसमें भी ये स्किल जो है वो बहुत हेल्प करती है। हाउ टू मूव, कौन से जेस्चर्स कहाँ पे देने हैं, कितना मूव करना है, प्यूपल्स को पार्टिसिपेट कैसे करवाना है उन टीचिंग एड्स को यूज करने में, ऑल दिस थिंग्स, these are the basically the objectives of skill of stimulus variation. अब रिसर्चर्स ने बहुत बार आपने भी पढ़ा होगा, रिसर्चर्स हैव कोटेड कि हम 10% पढ़कर जो है वो सीखते हैं, 20% हम सुनकर सीखते हैं, 30% ऑफ व्हाट वी सी जो हम देखते हैं, 50% ऑफ व्हाट वी हेयर एंड सी, 70% ऑफ जो हम बोलते हैं, 90% डेमोन्स्ट्रेशन, saying and demonstration. तो that means कि various type of stimuli जो हैं वो मदद करते हैं, all the senses are helping us in one way or the other. उनकी percentage vary कर सकती है but they are helping us in understanding of our concepts. और अगर ये senses properly use की जा रही हैं तो the understanding is not a failure at any level. 100% ये गारंटेड है कि अंडरस्टैंडिंग जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, अगर बच्चों की सारी सेंसेस को प्रॉपरली यूज किया जा रहा है, जहां पे जो सेंस यूज होनी चाहिए वो की जा रही है, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपरली पॉसिबल होगी। अब नीड एंड इम्पोर्टेंस, ऑब्वियसली अभी मैंने बोला कि सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो बहुत हेल्प करते हैं हमें
कोई भी चीज को, कंटेंट को, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। और हमारी जो अटेंशन स्पैन है ना, वो किसी भी स्टिमुलाई पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहती, तो उसको चेंज करते रहना इट इज वेरी नेसेसरी। चेंज, वेरिएशन जो होती है वो लाइवलीनेस लेकर आती है, मोनोटनी ब्रेक करती है लेसन की। तो अगर वो वेरिएशन हम लेकर आएंगे, वो वैरायटी हम प्रेजेंट करेंगे, मोनोटनी ब्रेक होगी, अंडरस्टैंडिंग डीप होगी। जो हम बात बार बार कहते हैं, यूज ऑफ ऑल द सेंसेस टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वो जो है वो पॉसिबल इससे होती हुई आपको नजर आएगी। अगेन अगर हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की बात करें इसकी, इट इज अगेन अ 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। कंपोनेंट्स इसमें कोई भी अनडिजायरेबल नहीं होते। जैसे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में हमने अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स की बात की थी, इसमें कोई भी अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स नहीं है। ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जो आपकी स्किल में होने ही चाहिए। Explanation of these components will follow, but these are the 8 components जिनकी रेटिंग अगेन 1 to 7 के रेटिंग स्केल पे की जाती है। सेम 1 stands for extremely weak and down, वो जो ऑर्डर है फॉलो होता है। 2 for very weak, 3 for weak, 4 for average, 5 for good, 6 for very good and 7 for excellent. And हायर ऑर्डर, इस केस में हायर ऑर्डर रेटिंग स्केल पे अगर आपको आपका जो ऑब्जर्वर है, जो सुपरवाइजर है, वो रेट करता है, तो दैट मीन्स आप इन सभी कंपोनेंट्स को बहुत प्रॉपरली अपने लेसन में इनकॉर्पोरेट करके आपने अपनी स्किल को, जब आपने अपने माइक्रो लेसन को डिलीवर किया, तो आपने इन सारे कंपोनेंट्स को प्रॉपरली यूज करके जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया। अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जेस्चर्स। अब जेस्चर्स जो होते हैं, इट इज मूवमेंट ऑफ हेड, हैंड्स, फेशियल जेस्चर्स टू कैप्चर द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। एक टीचर क्लास में जाता है, अगर वो विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, विदाउट एनी फेशियल एक्सप्रेशंस, विदाउट एनी जेस्चर्स, विदाउट एनी मूवमेंट्स, अगर वो क्लास में जाके स्टिल खड़ा हो जाता है और अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है, नो स्टूडेंट विल लाइक टू अटेंड दैट क्लास। तो हैंड मूवमेंट्स, आई मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, फेशियल जेस्चर्स, ये सारे जो हैं एक टीचर की पर्सनालिटी का पार्ट है। अगर ये जेस्चर्स राइट टाइम पे राइट जेस्चर्स टीचर देता है, तो पहले इनिशियल लेवल पे, अभी उसने चाहे पढ़ाना शुरू नहीं भी किया, तब भी वो स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। जो उसका कहते हैं ना, अगर आधा काम जो उसका है वो वहीं पे हो जाता है। तो confidence, how does the teacher stand in the class, how he moves his heads, his hands, what are his facial expressions, and किस तरह से वो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट देता है। You are still, a student is saying something, you ask something, a student is responding back to you, you are not even letting him know कि उसने जो कहा वो सही था या गलत था। तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टूडेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है आपके लेसन में वो खत्म होती चली जाएगी। तो नॉडिंग योर हेड so as to encourage the student, या अगर स्टूडेंट दैट इज एग्रीमेंट, और अगर आप डिसएग्रीमेंट शो करते हैं कि आपने कुछ पूछा लेकिन जो स्टूडेंट है उसने नहीं, उसका रिस्पॉन्स जो है वो करेक्ट नहीं था, तो दैट मीन्स कि डिसएग्रीमेंट। अब वो डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए भी आपको कोई ना कोई जेस्चर जो है वो देना ही पड़ेगा। अगर कोई चीज ऐसी बताई जा रही है जो इट्स वेरी अडोरेबल, इट्स वंडरफुल, इट्स समथिंग न्यू, इट्स इंटरेस्टिंग, your facial expressions, you raise your eyebrow, you give that kind of an expression कि yes, something interesting is being told, वो एक पॉजिटिव जो है फीडबैक देता है स्टूडेंट को और उसको एनकरेज करता है टाइम एंड अगेन आपके लेसन में अपनी इन्वॉल्वमेंट को शो करने के लिए। फिर आ जाता है टीचर्स मूवमेंट्स। अब
ओवरऑल जो फिजिकल मूवमेंट होती है टीचर की विद द पर्पस ऑफ कवरिंग द होल क्लास, वो बहुत जरूरी होती है. हमने खाली क्लास में जब हम जाते हैं तो हमने फ्रंट बेंच के जो स्टूडेंट्स होते हैं खाली उनको नहीं पढ़ाना होता. वी हैव टू बी इंटीमेट टू द एंटायर क्लास. हमने बैक बेंचर्स के साथ भी अपनी उतनी ही इंटीमेसी एस्टैब्लिश करनी होती है, उतना ही जो इंटर रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट का, पहली रो में बैठे हुए बच्चों के साथ या दूसरी रो में बैठे हुए बच्चों के साथ, वी हैव टू एस्टैब्लिश इट विद द एंटायर क्लास. सो मूवमेंट्स जो हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए. अननेसेसरी मूवमेंट्स दे आर नॉट डिजायरेबल. आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, आप किसी चार्ट या मॉडल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अटेंशन पे कर रहे हैं टुवर्ड्स अ प्यूपिल जो आपके किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ही इज टेलिंग यू समथिंग इंटरेस्टिंग, आप अपने जगह से मूव करके उसके पास तक जाते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, अपना हेड नॉड करते हैं. दीज kind of जो movements हैं, these are meaningful, these are purposeful, and these ought to be done in the class so that the lesson can be made effective. Now, sometimes you are asking a question. While you are asking, you go towards the student and then you slightly move back towards backward, in a backward position, so that you involve all other students. You are putting your question to a particular student and you go close to him and then you start moving backward, giving the feeling to the entire class that you are involving them in that portion is not meant for that particular student, it is meant for the entire class, but at this particular time that particular student has been asked. That is very important. Observe, आपने पूरी क्लास को ऑब्जर्व करना है. आप राउंड लेते हैं, पीछे तक जाते हैं, and then from back you start moving towards the front. These are the movements which give a feeling to the entire class that you are involving them, they are being involved, they are not left out. Whatever you are explaining, whatever you are discussing, whatever you are asking a particular student or a second or a third student, it is for the entire class. Now, कौन सी movements हमें avoid करनी चाहिए? Unnecessary movements जो होती हैं, sometimes certain teachers tend to play with chalks. It normally happens. आप कुछ explain कर रहे हैं, लेकिन आपने chalk अपने हाथ से छोड़ा नहीं है, उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं, या आपने you are holding your dupatta or any of your cloth and you are having a habit of making unnecessary movement with that. So that is not desirable. टीचर की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो डिजायरेबल मूवमेंट्स होनी चाहिए. व्हेन रिक्वायर्ड, इफ रिक्वायर्ड, तब वो मूवमेंट जो है वो क्लासरूम में होनी चाहिए. देन चेंज इन स्पीच पैटर्न. इमोशंस जो होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो चेंज इन स्पीच पैटर्न है वो बहुत जरूरी है. टोन, वॉल्यूम, स्पीड, उसको बढ़ाना, कम करना, that only makes the lesson effective, makes the pupils attentive and ultimately creates the interest of the pupils in the lesson. इसमें पहले ये आ जाता है कि loud enough होनी चाहिए, जो टीचर की वॉइस होनी चाहिए, it should be loud enough so that the entire class could get what the teacher is trying to say. जो बोला जा रहा है वो कंटेंट के अकॉर्डिंगली बोला जाना चाहिए. देन स्पीड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए. अब when you are expressing some happiness or enjoyment, you can speak fast. Wow, it's great. ये एक ऐसे expressions है जो आप तेज बोल के भी express कर सकते हैं. जब कुछ sorrow की बात आप express कर रहे हैं या किसी sad mood को express कर रहे हैं, तो then you speak slowly. That ultimately at the end of it, the life of that great person was finished. He was assassinated. He was shot dead. You have to speak such kind of sentences slowly. And when the content is difficult, you know that you are dealing with a difficult content in your class, then it's necessary that you speak slowly so that the entire class
the class with which you are dealing, they are able to understand your content properly. तो स्पीड जो है वो सही होनी चाहिए. हमें ये पहले ही जज करके रखना पड़ेगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं. It is relating some happy moment, it is relating a sad mood or a sorrowful event, or you are dealing with a difficult content. स्ट्रेस जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब आप वो स्ट्रेस देते हैं तो बहुत स्लाइट से स्मॉल पॉजेस या साइलेंट पॉजेस जो हैं आप उसको देने में यूज कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप उसमें पॉज यूज करेंगे, आप थोड़ा सा साइलेंस क्रिएट करेंगे, तभी स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा कि जो चीज भी टीचर समझा रही है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. Then is change in interaction pattern. अब जब हमारी communication चलती है, when two or more persons communicate their views to each other, इसी को हम interaction कहते हैं. Generally हमारी classes में interaction होती कैसे है? It is कि teacher is speaking and the students are listening. पर हम अपनी इस interaction को जो है वो improve कर सकते हैं, better कर सकते हैं. 4 स्टाइल्स से इन इंटरेक्शन, इस जो इंटरेक्शन है इसको किया जा सकता है जब क्लासरूम में टीच किया जाता है. बिकॉज जब आप कहते हो ओनली द टीचर स्पीकिंग एंड द क्लास लिसनिंग, तो वो एक मोनोटोनस एनवायरनमेंट है. आप बच्चों को पैसिव बनाते जा रहे हैं, आप उनको एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहे. So this is not desirable. Yes, at certain points when a new content is being taught or when the old knowledge is not being linked to their new knowledge, something entirely new is being presented to them or something difficult is being presented to them, तो उस टाइम पे जो टीचर है वही मेन स्पोक्स पर्सन होता है और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन रहे होते हैं. बट this should not happen in the entire skill or in the entire lesson when it is going on. Teacher class interaction is important. It happens, it makes the basic जो प्लेटफॉर्म है वो यही है कि टीचर बोलता है और क्लास सुनती है. बट इसमें वेरिएशन लेकर आना, इसको चेंज करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक इसका सेकेंड वे ये हो सकता है कि टीचर इज इंटरेक्टिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास. समटाइम्स ही इज पोजिंग क्वेश्चन टू some student, sometimes he's posing question to other student, sometimes he throws open questions and the students raise their hands. He can give an opportunity to 2, 3, 4, 5 students to explain what they have in their mind. This is टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन. जो चीज हम कहते हैं कि लाइवली होना चाहिए क्लासरूम, एक जो लाइवलीनेस क्लासरूम में आनी चाहिए, बोर्डम जाना चाहिए, स्टूडेंट्स पैसिव नहीं होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, वो इसी से पॉसिबल है कि जब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करें, टीचर की प्लानिंग लेसन की इस तरह से हो कि टीचर के पास एनफ स्कोप हो बच्चों को अपने उस लेसन में इन्वॉल्व करने के लिए. फिर आपका आ जाता है स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन. इसको प्लेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है. टीचर जो है वो कोई कंसेप्ट थ्रो कर सकती है स्टूडेंट्स को, फिर एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो प्रोवाइड कर सकती है जिसमें वो 2 स्टूडेंट्स को, 2 या 3 स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में जो है वो एलोकेट कर सकती है उस टास्क को, ताकि स्टूडेंट्स आपस में उस चीज को डिस्कस करें और उसमें से कुछ कंक्लूड करके टीचर के सामने उसको प्रेजेंट करें. अब जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, अभी हमने बात की कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है उस पे हमारा प्रेजेंट करिकुलम जो है वो खड़ा है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म कहता ही यही है कि स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो देना बहुत जरूरी है. और ये एक्सप्लोरेशन पॉसिबल ही तभी है जब टीचर कुछ टाइम के लिए साइलेंट मोड पे जाके कुछ इस तरह के टास्क्स जो है वो जनरेट करें जिसपे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर
सके और अपनी उस इंटरेक्शन से जो रिजल्ट निकलता है वो टीचर के सामने प्रेजेंट कर सके। देन इट इज स्टूडेंट टीचिंग एड इंटरेक्शन। बहुत तरह के टीचिंग एड्स जो हैं वो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्किल यूज की जाती हैं। चार्ट्स यूज किए जाते हैं, मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑडियो विजुअल एड्स, all these things are used to make the lesson dynamic, to make the lesson interesting. अब how to make the students interact with these teaching aids, that is what very important, कि आप उन मॉडल्स को यूज करने में जो टीचर है किस तरह से स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन प्रोक्योर करती है, उन चार्ट्स को यूज करने में, हैंडल करने में किस तरह से प्यूपल पार्टिसिपेशन प्रोक्योर करती है, कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उसमें प्यूपल पार्टिसिपेशन कैसे प्रोक्योर करती है। बेसिकली दिस इज स्टूडेंट टीचिंग एड इंटरेक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। टीचिंग एड सिर्फ आपका लेसन लाइवली बनाने के लिए नहीं है, टीचिंग एड इसलिए भी है ताकि स्टूडेंट्स उस टीचिंग एड को एक्सप्लोर कर सके, उस टीचिंग एड को आपकी मदद से कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सके और लेसन जो है वो एक्टिव बने, प्यूपिल्स खुद अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे और उनको उनका जो एक इंटरेस्ट है, एक रुचि जो है वो आपके माइक्रो लेसन में या जब आप इन स्किल्स को कलेक्टिवली अपने कंपोजिट लेसन में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो रुचि जो है उनकी आपके लेसन में बनी रहे। फिर आ जाता है फोकसिंग। अब द टीचर ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द प्यूपिल्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द लेसन। या तो वो वर्बल फोकसिंग होती है या वो जेस्चरल फोकसिंग होती है। जब हम वर्बल फोकसिंग की बात करते हैं, वर्बल वी नो व्हेन वी स्पीक, आप बच्चे की अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। लुक हियर, लिसन टू मी, नोट इट केयरफुली। These are some of the catchwords which we use जब हम बच्चों की वर्बल फोकसिंग जो है वो करवाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ। जेस्चरल फोकसिंग तब होती है जब आप बोल रहे हैं लेकिन आप अपने हैंड्स की हेल्प से, आप पॉइंटर यूज करके किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ जो है वो अपना फोकस बच्चे का शिफ्ट कर रहे हैं। यू आर स्पीकिंग एज वेल एज यू आर यूजिंग जेस्चर्स, you are using your fingers, you can use your hand, you can write on the blackboard, you can underline the important words on the blackboard, and you are directing the attention of you are making the child focus towards that blackboard, towards a particular chart, anything towards which you are drawing the attention of the pupil towards, that is basically what is focusing. So इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कुछ इंपॉर्टेंट करवाने लगे हो, जब आप कुछ ऐसी चीज बताने जा रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि स्टूडेंट एक्स्ट्रा अटेंटिव होके उस बात को सुने, तो आपका ध्यान होना चाहिए कि हाउ टू मेक द चाइल्ड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसपे आप बच्चे की अटेंशन ड्रॉ करवाना चाहते हैं। Then is pausing. Pausing means to how the teacher बोलती है. This means stop talking by the teacher for a moment. जब टीचर एक थोड़ा टाइम के लिए साइलेंट होती है, these are certain moments जब वो अपनी टीचिंग में थोड़ा साइलेंट है तो इट इज फॉर अ रीजन कि वो बच्चे की अटेंशन ड्रॉ करना चाहती है। बच्चा जो है क्यूरियोसिटी से देखता है टीचर की तरफ, तो बेसिकली किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को वो एम्फसाइज कर रही है। आफ्टर एम्फसाइजिंग वो थोड़ा फॉर मोमेंट्स वो साइलेंट होती है या वो कोई सस्पेंस ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें सस्पेंस है एंड शी वांट्स कि प्यूपिल्स थिंक करके और रिस्पॉन्ड करें। देन इट इज नेसेसरी। ऑब्वियसली अगर आप उनको थोड़ी स्पेस देंगे तभी उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो वर्क करेगी, नहीं तो आप बोलते जा रहे हैं तो दे आर लिसनिंग टू यू बट यू वांट दैट दे शुड थिंक एंड दे शुड स्पीक। तो ऐसे केस में यू हैव टू टेक अ पॉज। आपको
आप चाहते हैं, जिस पॉइंट पे चाहते हैं कि उनका जो थिंकिंग है वो अराउज हो और वो आपको रिस्पॉन्ड करें, या आप किसी पॉइंट पे एम्फसाइज करके ये बताना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसी स्टेज में, ऐसे केस में जो है पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टू प्रोवाइड टाइम टू स्टूडेंट्स की वो सोच सकें, अभी मैंने कहा कि आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें, तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करें तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि यू गिव देम टाइम कि वो थोड़ा सा सोच सकें और वो फिर आपको रिस्पॉन्ड बैक कर सकें। टू प्रमोट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बाय प्रोवाइडिंग एनकरेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू कमेंट और क्वेश्चन। अब आप चाहते हो कि बच्चा आपकी उसमें पार्टिसिपेट करे, वो पार्टिसिपेशन तभी पॉसिबल है अगर आप साइलेंस या पॉज देते हैं अपने लेसन के बीच में। आप चाहते हैं कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, आप चाहते हैं कि वो आपसे पूछें, तो वो पूछेंगे तभी, वो तभी एनकरेज फील करेंगे आपसे पूछने के लिए अगर आप थोड़ी सी स्मॉल ब्रेक्स जो हैं वो अपने लेसन के बीच में लेते हैं, पॉजेस लेते हैं। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये पॉजेस हो, क्योंकि तभी उन पॉजेस के बीच में स्टूडेंट्स कैन मेक वे फॉर देमसेल्व्स टू आस्क, टू रिस्पॉन्ड, टू मेक द टीचर टू गिव अ इंडिकेटर। वो इंडिकेटर होता है कि जब वो बच्चा पूछता है या बच्चा रिस्पॉन्ड करता है तो बेसिकली वो एक इंडिकेटर होता है टीचर के लिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो बच्चा सुन रहा है, उसको समझ आ रहा है। समझ आ रहा है तभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सुन रहा है, तभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है उसने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की है आपके लेसन में कि वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर सके। Then is audio visual switching. This is very important कि पहले तो हम वर्बली ही बात करते हैं, इंफॉर्मेशन नॉर्मली वर्बली दी जाती है, जिसको आप ओरल मीडियम कहते हैं। लेकिन जब आप कोई ऑब्जेक्ट दिखाते हो, मैप दिखाते हो, चार्ट दिखाते हो, मॉडल दिखाते हो, लेकिन बोलते नहीं, दैट इज विजुअल मीडियम। एंड इफ द टीचर इज गिविंग इंफॉर्मेशन to the pupils through any of this one medium, तो उसको आप कहते हो ऑडियो मीडियम, विजुअल मीडियम या ओरल विजुअल मीडियम। अब बच्चे मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज में कि कब हम इसको कहते हैं ऑडियो या ओरल मीडियम, कब हम इसको कहते हैं विजुअल मीडियम, कब हमारी स्विचिंग होती है। ऑडियो विजुअल स्विचिंग से हमारा मतलब क्या है, हाउ कैन this happen, how this happens actually। तो ये तीन तरह से होता है। फर्स्ट इज ऑडियो से ऑडियो विजुअल। व्हेन द टीचर while speaking वो कोई चार्ट, मॉडल, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और उसको यूज करके एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, दैट इज स्विचिंग फ्रॉम ऑडियो टू ऑडियो विजुअल। आप बोल रहे थे, आपने एक्सप्लेन करते करते अपने साथ एक सपोर्टिंग मटेरियल लिया इन द फॉर्म ऑफ एनी रियल ऑब्जेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, इन द फॉर्म ऑफ मॉडल। आपने उसको लिया और आपने उसको दिखाया ही नहीं, आपने उसको दिखाते दिखाते उसको यूज करके उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन भी किया। दिस इज शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम ऑडियो टू ऑडियो विजुअल। अब आ जाता है ऑडियो से विजुअल कब होता है। Teacher is speaking, he is showing an object, he is showing a map, he is showing chart, he is showing globe, he is showing any real object, but he is not explaining using that. That is shifting from audio to visual. जब वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है लेकिन एक्सप्लेन करते करते वो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट को यूज करके आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। थर्ड इज विजुअल टू ऑडियो विजुअल। जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है साइलेंटली, आप विजुअलाइज कर रहे हो, टीचर क्लास में कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वो कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो किसी तरह से भी कोई भी मॉडल वो यूज करके कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। एक जियो बोर्ड ले लिया स्टूडेंट ने, मैथमेटिक्स में हमारा जियो बोर्ड बड़ा फेमस होता है, पिन्स लगे होते हैं, आपने जियो बोर्ड ले लिया, उस पे आप रबर बैंड्स यूज करके वेरियस फिगर्स जो हैं वो बना रहे हैं। आपने एक ट्रेपेजियम बनाया, क्वाड्रिलेटरल बनाया, रेक्टेंगल बनाया। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, आप साइलेंटली वो जो
फिगर्स हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स जो हैं वो उस जियो बोर्ड पे बनाते जा रहे हैं। उसके बाद आप उस फिनोमिनन को जब एक्सप्लेन करते हैं थ्रू अ चार्ट, आपने वो बना दिया, जियो बोर्ड यूज किया, आपने ट्रेपेजियम बना दिया, आपने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, आपने रेक्टेंगल बना दिया। अब आपने उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, आपने बताना है कि रेक्टेंगल की क्या होती हैं और ट्रेपेजियम की क्या होती हैं, क्या क्या जो है ऐसी चीजें हैं जो इन तीनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं, और वो बताने के लिए आपने एक चार्ट का इस्तेमाल किया। दैट इज विजुअल टू ऑडियो विजुअल। सो 3 तरह की स्विचिंग होती है, ऑडियो टू ऑडियो विजुअल, ऑडियो टू विजुअल एंड विजुअल टू ऑडियो विजुअल। अगर ये चीज हमें क्लियर हो जाती है तो जब हम बेसिकली जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं वो इस पॉइंट पे कि व्हाट इज बेसिकली ऑडियो विजुअल स्विचिंग, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें हमें क्लियर हैं तो हम जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता रहेगा कि एक्चुअली ये ऑडियो विजुअल स्विचिंग होती क्या है। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कंसेप्ट, इट इज वेरी इजी। बस ये 3 टाइप्स जो है हमें पता होनी चाहिए। अब है pupils फिजिकल पार्टिसिपेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो है अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। आप क्लास में अगर एक्टिविटीज करवाते हैं तो स्टूडेंट्स दे गेट एंटरटेन्ड थ्रू दोज एक्टिविटीज। अगर आप एट द टाइम ऑफ शोइंग मॉडल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेटिंग एनीथिंग, अगर आप बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें करवाते हैं तो दैट इज बेसिकली फिजिकल पार्टिसिपेशन। आपने बच्चे को उठाया, बुलाया, उससे कुछ करवाया, आपने कोई पिक्चर कट करवाई और उसको पेस्ट करने को कहा, आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आपने स्टूडेंट की हेल्प ली उस डेमोन्स्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, आपने कोई एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा, आपने उसके कुछ स्टेप्स किए और कुछ फर्दर स्टेप्स करने के लिए आपने बोर्ड पे किसी पर्टिकुलर बच्चे को बुलाया, मैप के ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए आपने बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ली, तो दैट इज बेसिकली प्यूपिल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। और ये जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है ये अंडरस्टैंडिंग को बहुत इजी बना देती है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं उनसे एंटरटेन्ड रहते हैं और अलर्ट भी रहते हैं। जब अलर्ट रहेंगे तो जो डिसएमिनेशन ऑफ कंटेंट आप कर रहे हैं वो कंटेंट उन तक प्रॉपरली उनके माइंड तक पहुंचेगा, उसको ठीक तरह से वो रिटेन कर पाएंगे और उसकी जो रिटेंशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगी। बिकॉज शुरू में ही मैंने कहा सेंसेस, यू आर यूजिंग ऑल टाइप ऑफ सेंसेस ऑफ द पीपल्स इन दैट पर्टिकुलर स्किल। तो जो पढ़ाई हुई चीज है वो देर तक याद रहती है। अब आ जाता है माइक्रो लेसन प्लान ऑन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अब बेसिकली मैंने ये जो लेसन उठाया है ये सोशल साइंसेस से उठाया है। लेसन नंबर, डेट, वो जो फॉर्मेट रहेगा वो वैसे ही रहेगा। यू राइट द सब्जेक्ट, यू राइट द टॉपिक, यू राइट द इलस्ट्रेटिव एड्स, क्लास, पीरियड एंड टाइम फॉर 5 to 7 मिनट्स जो भी आपकी स्किल का टाइम है। ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि आप जब अपनी प्लानिंग करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी कर सकते हैं, टीचर एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी। इस केस में जब एक्टिविटी हो रही है तो आप कंपोनेंट्स ऑफ द स्किल साइमल्टेनियसली जो है वो मेंशन करते हैं। फॉर द क्लैरिटी ओवर हेयर मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में करना जो है वो ज्यादा बढ़िया समझा, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो लेसन प्लान। तो पहला है, टीचर क्या कहती है, आई शैल टेल यू अ स्टोरी, ट्राई टू बी अटेंटिव। तो प्यूपिल की व्हाट इज द स्टोरी मैम? Now here it is the verbal focusing. आपने कहा try to be attentive. आप ये मैंने आपको शुरू में कहा try to be attentive, try to be observe, look carefully. ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी verbal focusing, आप मुंह से कह रहे हैं और बच्चों का जो attention है, focus है, वो अपनी तरफ draw करवा रहे हैं। तो this is basically verbal focusing. Second is, for what is Jhansi famous for? तो pupil activity was for Rani Lakshmibai.
here you have pupil participation. झांसी का नाम सुनते ही आजकल तो देखो आगे तो किताबों में बच्चे पढ़ते थे, आजकल जो आपके टेलीविजन्स हैं, जो आपकी स्क्रीन्स हैं, वहाँ पे जो विजुअलाइजेशन है इन आइकॉनिक कैरेक्टर्स को, जिस तरह से इनके ऊपर सीरियल्स बनाए जाते हैं, जो बच्चे हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट लेके इसको जो है वो देखते हैं. तो झांसी का नाम सुनते ही सबसे पहले जो वर्ड हमारे दिमाग में आता है दैट इज it is famous for Rani Lakshmibai. So here जो component of the skill which was used, that is pupil participation. Then third one is, yes, I shall tell you the story of Rani Lakshmibai. It's very interesting. Listen carefully. Again, you are saying listen carefully. आप उनकी curiosity को arouse कर रहे हैं. तो again it is verbal focus. Fourth आपका आ जाता है, She was born in Kashi on June 16, 1835. Students are listening carefully. The teacher is interacting with the class. Basically वो एक facts के बारे में बता रही है और teacher उन जब facts को बता रही है तो students उसको carefully सुन रहे हैं, तो teacher class interaction is going on. Then do you know she was married? Do you know means you pause a little. Do you know she was married to Shri Gangadhar Rao, a ruler of Jhansi in 1842. The students, they tend to listen attentively, and the component says when you pause, do you know, and they are listening to you attentively, so that means verbal focusing that is going on. Then the next is the teacher says Shri Gangadhar Rao died in 1853 and she became the queen of Jhansi at the small age of 18 years. Here your speech pattern that changed. There was a change in speech pattern and you paused a little. Then next you show, you are again, now it is oral visual switching. You are showing the portrait of Rani Jhansi, you are speaking and you are showing that portrait, that is oral visual switching. And then when you are saying, though the span of her reign was very short, but she proved herself very efficient and just ruler and great administrator. You are pausing, there is change in speech pattern because you are explaining about her. You are telling that though the span of her reign was very short, but she proved herself very efficient and just ruler and great administrator. Then again, her portrait is being shown, you are speaking, so oral visual switching is going on. You change the tone of your speech and you say, she fought against the Britishers for the independence of the country in 1858. They are listening to you enthusiastically. They are very attentive because not only you are speaking, you are displaying the portrait of the queen simultaneously. You are changing the tone of your speech. You are telling something to them which is very interesting. You are telling them how she fought with the Britishers. For what she fought? She fought for the independence of the country in 1858. And the last one was, she was accepted as the bravest soldier of the battlefield by the English general. Now, their attention, their interest is in what you are speaking. You take small pauses while you are reciting these lines, and in this way, all the components which were included in the skill of stimulus variation, they get covered in the entire lesson. Now, not only this lesson, this was a lesson from social studies. My basic interest is mathematics, so I would like to present you one lesson from mathematics also for the skill of stimulus variation. Basically, it is on types of angles. Again, the PT enters the class, she wishes good morning, the students stand up, and the voice change in voice pattern, change in gestures, it starts
from the beginning, from the very beginning, the PT enters the class. Now the students, the PT will say, well students, we will study about types of angles, and while speaking about the topic, while she's speaking the topic, she will write that topic on the blackboard. There is verbal focusing, there is audio visual switching. The teacher is asking the student to focus on the blackboard. She's speaking as well as she is writing the content on the board. Now, PT will ask student, she will draw a diagram. You can use a chart, she can draw the diagram on the board, and she can ask the students to look carefully on the chart, and she will explain the definition of the angle. Audio visual switching is going on. Why? Because she's speaking, she's using the chart, and she's explaining the definition of the angle. She explains that when two rays combine with a common endpoint, an angle is formed. The components of angles are sides and vertex. Now, she continues. Teacher class interaction goes on over here. She explains that the sides can be categorized as terminal sides and initial sides as shown in the figure. She further continues, and she now here she uses her hand movement. When we say that our movement, one of the one of the component of the skill is how do you move, and it is not always necessary that you are moving about in the class physically. You can use your hand movements. You can raise one of your hand in a vertical direction. One hand can be kept in a horizontal direction, and you can explain what is a right angle. You can write the definition of that right angle on the blackboard. Then again, using your hands, you can tilt your hands, you can move your hands in clockwise direction. When you move your hand in clockwise direction, you know an acute angle will be formed. When the hands are straight, a right angle is formed. When you move your hands in clockwise direction, angle tends to go less than 90 degrees and an acute angle is formed. The PT can ask the students see carefully and answer what is the angle which can be seen by the movement of my hands when I move one of my vertical hand in clockwise direction. If the pupils respond that the angle is less than 90 degrees, the teacher nods her head in yes, that yes, you are correct. This is the physical involvement of the pupil. He is pausing, the PT is pausing. There is change in voice pattern. The PT is using his hand movement to express, to explain the types of angles. Further, the PT again using his hands or her hands can move her vertical hand in an anti-clockwise direction, and further he can ask the students, now what kind of angle do you observe? Obviously, when it is the hand is standing vertically right, it's 90 degrees. When the hand goes to the anti-clockwise direction, an obtuse angle is formed. The students respond back to you that it is an obtuse angle. You can nod your head. Nodding your head is giving gestures. You change your voice pattern. Yes, very good. An angle which is being formed by rotating my vertical hand in anti-clockwise direction, that is an obtuse angle. Further, she goes on, and now when she wants to explain a straight angle and a reflex angle, now when we say real objects should be used, teaching aids should be used, variety should be incorporated in our lesson. To explain a straight angle and to explain a reflex angle, PT can take the help of a clock. She can take the clock, she can arrange the needles of the clock in such a way that the clock shows the time of 6 o'clock. And PT can ask, well, students, what angle do you feel is formed when both the needles of the clock are showing you the time 6?
obviously the answer is 180 degree. It is a straight angle. A straight angle is 180 degree. When measured, it is just a straight line because the angles between its arms is 180 degree. Continuing, he can or she can explain a reflex angle, that when it's 115, an angle which you are getting between the two arms, the inner angle is acute angle. What about the angle which is the larger one? What is the larger angle that is complementary to the acute angle called? That complementary angle, that is the outside angle which is being represented by the red part, that is basically the reflex angle. And then she can write, she can give one more example, she can ask a student, she can call a student, she can ask the student to arrange the needles in such a way that the time of 5:20 is shown on the clock, and she can ask again, what do you feel, what is the outer angle which is complementary to the acute angle which is being formed when the needles are showing the time of 5:20. So the answer will be, it is a reflex angle. She can write the definition of reflex angle on the board, that a reflex angle is that whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree. So while explaining all these things, whether it was the movement of hands, whether it was using real object clock, whether it was blackboard, all kind of components of all the components of skill of stimulus variation, they got incorporated in the lesson. Pupils, they will find the lesson to be interesting, they will enjoy the lesson. You are making them participate in the lesson, you are asking them questions, and all this that will seek the attention, that will help the students to put in their attention in the skill which is being demonstrated. So on concluding, I would like to just say that all the skills, whatever skills which we learn in our teacher training colleges, they are very important. Those skills actually become a part and parcel of the composite lesson. It is because of micro teaching that we can practice all these skills at an individual level. The pupil teachers, they get an opportunity that before directly going to the composite lesson, they can take their time, they can reduce the content, and they can they can practice the skill, so that when they use that particular skill in the macro lesson, the lesson tends to become a success. Thank you. Thank you very much, Dr. Pooja. It was really a remarkable session. The chat box is full of appreciable words, and the best one is participants are requesting for another such type of workshops. There is no better. Thank you, Dr. Vikas. I could not mention initially, but I would like to thank you. You have not only been my friend, but you have been a mentor to me also. I often tell you, where I am, whatever I am, where I am, I always feel indebted to you. I know you are always there for me, and you are some of those very few people to whom I owe where I am standing today. Thank you very much. Nothing like that, ma'am. Please. Now I am asking you some questions of participants. Yes, sure, sir. Yes. Renu is asking, ma'am, please show last slide of SST lesson plan. Yes, just a minute. Yes. Sure. Last slide of SST lesson plan. Just a minute, please. Yes, yes. Yes, please go on. Nothing, ma'am. She just want to see the last slide. Nothing else. Okay, sure. Yeah.
There is another question. Yes. Yes, that is asking, Kirti is asking, ma'am, pausing and change in interaction pattern, these two components could be at the same time? Why She not? asking- Yes. See, once you pause, you are taking a silence, you're pausing, you're allowing the students to say something. At the same time, you're changing your interaction from one student towards the other. You're changing your pattern of interaction. There are so many students in your class. Why did you pause? You pause because you are giving them certain time, so that maybe you have put up a question and you want that they respond you back. Now, if you will continuously start, you will keep on looking at a particular child, how will you come to know that there may be some other students who are very curious in answering to you, they are ready with the answer, so it is possible. And there is one question by Dr. Vibha Chawla. She is asking, ma'am, how many cycles are required in micro teaching? See, you start with planning, you teach, and feedback is provided to you. Normally, what we do is, obviously, when a pupil teacher is teaching for the first time, there are going to be mistakes. The observer is going to pinpoint certain things. He's going to pen down certain corrections on that lesson. So replanning is done and reteach. The pupil teacher reteaches and feedback is provided. Normally, our time span is such short that when we go in teacher training colleges, we plan, we teach, we provide feedback. We replan, we reteach, we provide re-feedback. And here we stop. Actually, why is this cycle important? This cycle is important that unless and until a pupil teacher attains perfection in that particular skill, this should go on. So it's up to you. Up till what time you attain perfection in presenting that particular skill, that is important. Yes, ma'am. Thank you very much. Now I request ma'am Karuna Abray for presenting vote of thanks. Okay. So good evening, everybody. In the beginning, I would like to convey my thanks to Sardar Jaswinder Singh, librarian, for presenting the report of yesterday's session in a very planned manner. Thanks to Sardar Jaswinder Singh. Now I welcome and side by side convey my thanks to Dr. Pooja Arora, Assistant Professor, MGN College of Education, Jalandhar. Her major topic was micro lessons. She has taken two micro skills, skill of stimulus variation and skill of explanation. Ma'am, yours exceptional and carefully, you can say, own teaching skills are very remarkable. They are incomparable. Your skills were very, you can say, very defined, in a very defined manner it was, and was very easy for the students to understand it. You did your job in a very well manner. You have done justice to each and every assignment, whether it was stimulus variation or it was skill of explanation. So thanks a lot, ma'am. And in the same way, I convey my thanks to each and every person who is present in the workshop. So thanks a lot. Thank you. Thank you very much, ma'am. I once again thanks all the participants. And now we will meet again tomorrow at the same time, at the same platform. But once again, I am requesting to all of you, if any one of you is desirous of giving any reflection on the workshop, he or she can give her name, his or her name to me. If anyone wishes to give any reflection, then please contact me. Thank you very much. Now we'll meet tomorrow.